teacher, Dr. G.V. Black, in the first decade of last century. What is cavity prep? Mechanical alteration of defective, injured, or diseased tooth in order to best receive a restorative material which will re-establish a healthy state for the tooth, including aesthetic correction where indicated, along with normal form and function. What are the objectives of tooth prep? First objective is to remove all defects and provide necessary protection to the pulp. Extend the restoration as conservatively as possible. Tooth prep such that under mastication, both the tooth and restoration will not fracture or displace. Allow the functional and aesthetic placement of restorative material. फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं टूथ प्रेप को, उसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक तो जनरल फैक्टर्स हैं और एक पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। जनरल फैक्टर्स में आता है हमारे पास डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन, प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में आता है हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस, एज, चॉइस ऑफ मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन. First classification was given by Dr. G.V. Black, and now that classification is modified. Modification of G.V. Black classification. After that, Graham J. Mount and V.K. Sikri. G.V. Black classification was the first classification, universally accepted, based on type of treatment and area involved, controlled by a number of factors to gain access and visibility, removal of effective dentine from floor, room for restorative material, extension for prevention, retentive designs, cave surface margin, self-cleansing area. After that, simple modification or identification and G.J. Mount classification is according to site lesion, patent fissure, contact area, and cervical. According to size of lesion, minimum, moderate, and large, extensive. Sikri classification is same as G.V. Black classification. We will discuss the G.V. Black classification at the end of this presentation in very detail. Tooth prep terminologies. First of all, we have to understand the tooth prep terminologies. What is simple tooth prep? Or simple tooth prep involves only one tooth surface. What is compound tooth? Compound means two. So two tooth surfaces will be involved. Complex mean 3 or more surfaces. Terminology in cavity prep. Definition. What is cavity? Cavity is defined as a defect in enamel or dentine resulting from pathologic process of dental caries. Term cavity was used to describe a carious lesion in a tooth that has progressed to the point that part of tooth structure has been destroyed, as shown in the figure. For understanding the cavity prep, we have to understand the tooth prep walls. First of all, the internal wall. An internal is the prepared surface that does not extend to the external surface. As shown in diagram, this is the internal surface and this is the external surface. Axial wall. Axial wall is an internal wall parallel with the long axis of the tooth. This is the axial wall in class 2 and this is parallel with the long axis. What is pulpal wall? Pulpal wall is the perpendicular to the long axis of the tooth and is flat, as shown in the figure. External wall. External wall is the area that is extending external from the tooth. कौन सा यूज करती हो जी मैम थोड़ा सा स्लो पढ़ा सकती हैं? हाँ. External wall is prepared surface that extend to the external tooth surface as shown in the figure. ठीक है. What is floor? Floor is prepared wall that is reasonably flat. This is floor. ठीक है. Pulpal floor. It's also called floor. Pulpal wall. मैम कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, आप उनको प्लीज ऐड कर लें. Okay. Okay, done. Floor is prepared wall that is reasonably flat and perpendicular to the occlusal surfaces that are directed occlusogingivally. Enamel wall. Enamel wall is that portion of the prepared external wall consisting of enamel. This is the enamel wall. Dentinal wall is that portion of the prepared external wall consisting of dentine in which mechanical features can be located. ये बाहर जो है ना एनामल की सरफेस है और डेंटिन की सरफेस है. जो कैविटी का एरिया एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स एनामल दैट विल इंक्लूड एनामल वॉल, और जो एक्सटेंड कर रहा है इनटू द डेंटिन दैट इज कॉल्ड डेंटिनल वॉल. नाउ टुवर्ड्स द कैविटी प्रेप. दैट वाज ऑल अबाउट वॉल्स.
Now angles. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का इन प्रॉफ और वाइवास. What are the line angles and what are the point angles? Note it down. Line angle, it is a junction of the two planar surfaces of different orientation along a line. ठीक है, जब दो surfaces मिलेंगी along a line, they will make an angle that will be called as line angle. There are two types of line angles: internal line angles and external line angles. Internal line angle is that whose apex points towards the tooth, and external line angle whose apex is away from the tooth. Line angle involves two tooth surfaces, and point angle is junction of three planar surfaces of different orientation. मैम इंटरनल और एक्सटर्नल लाइन एंगल को बता जी. There are two types of line angles: internal line angle and external line angle. Internal line angle is a line angle whose apex points into the tooth, and external line angle is angle whose apex points away from the tooth. Point angle is junction of three planar surfaces of different orientation. We will explain these later also. ठीक है, आज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बताऊंगी, फिर इन नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी. Cavo surface angle is the angle of the tooth structure formed by the junction of the prepared wall cavity and the external surface of the tooth. For example, ये external surface है और ये cavity wall है. ये जो angle बन रहा है इनके बीच में, that is Cavo surface angle. ठीक है. Now line angles and point angles, class 1 और 2 में आपको पता होना चाहिए. Class 1 में how many line angles and point angles are there? ये भी वाइवा में प्रॉफ में पूछा जा सकता है. ठीक है. And this is the Cavo surface angle as made by these two birds. Now back to the GV Black classification in detail. Class 1 cavity, 2, 3, 4, 5, 6. We all know. We will briefly discuss it one by one. Class 1 cavity को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिसमें पेटेंट फिशर्स होते हैं, अक्लूजल सर्फेसेस होती हैं प्री मोलर्स की और मोलर्स की, अक्लूजल 2/3 होते हैं ऑफ बक्कल एंड लिंगुअल सर्फेसेस एंड लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर. ठीक है, पिट एंड फिशर्स, अक्लूजल सर्फेसेस, लिंगुअल सर्फेसेस एंड बक्कल लिंगुअल सर्फेसेस की अक्लूजल 2/3. क्लास 2 कैविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेस्टोरेशन ऑन प्रॉक्सिमल सर्फेसेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ. ये प्रॉक्सिमल सर्फेस है. व्हाट इज प्रॉक्सिमल? एनीवन? क्लास, कैन यू लिसन टू मी? मैम मीडियल और लेटरल Yes, ma'am. तो जो मीडियल और लैटरल सर्फेसेस के ऊपर रेस्टोरेशन होगी या कैविटी एक्सटेंड करेगी, दैट इज क्लास 2 कैविटी. क्लास 3 कैविटी है एंटीरियर टीथ के ऊपर होती है. ठीक है, लेकिन नॉट इन्वॉल्विंग द इंसाइजल एज, ओनली द प्रॉक्सिमल सर्फेसेस ऑफ एंटीरियर टीथ. इसको हम क्लास 3 कैविटी कहते हैं. ठीक है, ये जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन हम पढ़े. क्लास 4 कैविटी जिसमें एंटीरियर टीथ पे ही है, प्रॉक्सिमल के साथ इंसाइजल एज भी इन्वॉल्व हो गया है. क्लास 5 कैविटी जो है वो जिंजिवल थर्ड पे है ऑफ फेशियल और लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ ऑल टीथ. ये क्लास 5 कैविटी. ठीक है, या फेशियल सर्फेस पे है या लिंगुअल सर्फेस. कुछ समझ नहीं आया पूछ सकते हैं. क्लास 6 कैविटी जो है वो इंसाइजल एज ऑफ पोस्टीरियर टीथ पे है या अक्लूजल कस्प हाइट ऑफ पोस्टीरियर टीथ पे है, और इट इज गिवन बाय साइमन. क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दे आर योर बेसिक्स. आपको जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन प्लस क्लास 1 to 6 बिल्कुल रटा होना चाहिए. ठीक है क्लास. Okay, ma'am. Stages of cavity prep. First stage of cavity prep is initial step. This includes outline form, primary resistance form, primary retention form, and convenience form. And final steps में है removal of any remaining infected dentine or restoration, pulp protection, secondary resistance and retention, finishing the external walls, cleaning, inspecting, and sealing.
फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ। आउटलाइन फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम सारा केरीज को इंक्लूड करेंगे, माइंड में ये रखते हुए कि फाइनल प्रेप कैसी होगी, एक्सेप्ट फॉर द फिनिशिंग इनेमल। फिनिशिंग को छोड़ के, फिनिशिंग हम एंड पे करेंगे, ठीक है। हम एक रफ सी आउटलाइन बनाएंगे जिसमें कैविटी के मार्जिन इस तरह रखेंगे जैसे फाइनल प्रेप में होंगे। इसमें सारी केरीज इंक्लूड होनी चाहिए और इनिशियल डेप्थ जो होती है वो 0.2 to 0.8 mm होनी चाहिए पल्पली ऑफ द डेंटिनो एनामल जंक्शन। इसके प्रिंसिपल्स क्या है कि सारा वीकेंड एनामल को रिमूव करो, फ्राइबल एनामल को रिमूव करो, फॉल्ट्स को रिमूव करो और मार्जिन इस तरह होने चाहिए कि गुड फिनिशिंग ऑफ मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन हो सके, ठीक है। कस्प अगर आपने बिल्ड कर रहे हो तो उसके साथ आपने देखना है कि कस्प या तो इन्वॉल्व करोगे फुल, दैट इज कस्प कैपिंग, या बिल्कुल भी इंक्लूड ना हो। इफ हाफ और मोर देन हाफ ऑफ द कस्प इज इन्वॉल्व तो हम कस्प कैपिंग करेंगे। दिस इज लिटिल मोर देन योर लेवल। मार्जिनल रिजेस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन इनकी पैरेलल हो, मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजेस की। जो आपके लेवल से थोड़ा ज्यादा हायर है वो मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है। और मिनिमल हम एक्सटेंड करेंगे फेशियोलिंगुअली। इससे क्या होगा कि कस्पल फ्रैक्चर भी कम से कम होगा, टूथ की वीकनिंग भी कम होगी, कंजर्वेशन होगी, कंजर्वेटिव प्रेप होगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ प्रेप जो है, पिट एंड फिशर अगर कर रहे हैं तो 0.2 और स्मूथ सर्फेसिस कर रहे हैं तो 0.2 to 0.8, so that we can get the bulk of the restoration. So outline form for class 1 cavity is for upper molars is like dumbbell, and for lower molars is if the entire occlusal surface involved, then they resemble more like upper molars, that is dumbbell. Dovetail in molars and dumbbell in premolars. Now, second step of the initial cavity prep is primary resistance form. Primary resistance form is defined as that shape and placement of the cavity walls that enables both the restoration and tooth to withstand without fracture masticatory forces along the long axis of the tooth. कि हमने restoration को fracture होने से बचाना है along the long axis of the tooth. उसके लिए हमें क्या चाहिए, retention resistance form चाहिए हमें, ठीक है। रेजिस्टेंस फॉर्म का प्रिंसिपल क्या है, या तो हम मतलब कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें रेस्टोरेशन के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस फॉर्म कहाँ से मिल सकती है, या तो टूथ रिलेटेड होती है या रेस्टोरेशन रिलेटेड होती है। इफ इट इज टूथ रिलेटेड तो हम बॉक्स शेप्स बनाएंगे, फ्लैट फ्लोर बनाएंगे, ठीक है, और एक्सटेंशन हम एक्सटर्नल वॉल्स की नहीं करेंगे टू प्रिवेंट कस्पल फ्रैक्चर, ठीक है। और सेकंड इसका प्रिंसिपल ये है कि हम सारे इंटरनल लाइन एंगल्स राउंड हो ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन दांत के ऊपर कम से कम हो सके और इनफ थिकनेस हो टू प्रिवेंट इट्स फ्रैक्चर अंडर लोड। दीज आर ऑल पॉइंट्स दैट आर नीडेड फॉर प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। अचीव कैसे कर रहे हैं, बॉक्स शेप से, फ्लैट फ्लोर से, वीकन टू स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। प्रिजर्वेशन की है, कास्ट की, मार्जिनल रिजेस की, राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल्स हैं, adequate thickness of restorative material or reduction of cusp for capping if indicated. अब टाइप्स ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल्स जिनके लिए रेजिस्टेंस फॉर्म हमें चाहिए उनके लिए थिकनेस वेरी करती है। इफ इट्स फॉर अमेलगम इट्स 1.5 mm, इफ इट्स फॉर कास्ट मेटल 1 to 2 mm and porcelain thickness 2 mm. एक्सक्यूज मी मैम, जी कुछ लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं तो उन्हें प्लीज ज्वाइन इन कर।
Done. Third step is the primary retention form. आपको resistance form की समझ आ गई है क्लास? मैम इतनी सही से समझ नहीं आई, मतलब मैम कुछ टर्म्स थी ना वो ऐसे सर के ऊपर बहुत से ज्यादा गुजर डिटेल रही में है। फिलहाल नहीं जाओ, ठीक है? बिल्कुल आपने ना बेसिक समझना है। रेजिस्टेंस फॉर्म होती क्या है, मतलब आपको रेजिस्टेंस क्या चाहिए अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। मेस्टिकेटरी फोर्सेस जो होती है ना दांत के ऊपर जब अप्लाई होती है, जब आपने एक दांत को रिस्टोर किया होता है, ठीक है, तो वो कहाँ अप्लाई होती है? अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। तो वो डिसलॉज कर सकती है आपकी रेस्टोरेशन को। तो आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस फॉर्म अचीव करनी है कि आपकी रेस्टोरेशन डिसलॉज ना हो सके थ्रू मेस्टिकेटरी फोर्सेस, ठीक है? उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस फॉर्म को इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? या तो बॉक्स शेप दे दिया, मतलब कैविटी डिजाइन मैंने ऐसा बनाया कि बॉक्स शेप है, ठीक है? उसका पल्पल फ्लोर मैंने ऐसे बनाया कि वो फ्लैट है, ठीक है? राउंड एंगल्स, जो इंटरनल लाइन एंगल्स थे ना, जो आपको मैंने बताया था कि दो सर्फेसिस को मिलके एक लाइन एंगल बन रहे, वो राउंड कर दी कि स्ट्रेस ना पड़े, थिकनेस ज्यादा कर दी। तो इससे क्या हो जाएगा सबसे कि डिसलॉज नहीं होगी हमारी रेस्टोरेशन, ठीक है? मैम कुछ यही क्लियर आप हुआ ना है? डायग्राम पे समझा देना, क्योंकि ये लिखा हुआ तो हमें डायग्राम भी पे मतलब मैं नजर आ नेक्स्ट रहा टाइम है। पे समझा दूंगी, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर मैं ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है? अच्छा चलिए ठीक है। Primary retention. Now is the third stage, that is primary retention form. प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म का क्या मतलब है कि आपने डिसलॉजमेंट प्रिवेंट करनी है अलोंग द टिपिंग और लिफ्टिंग फोर्सेस। रेजिस्टेंस और रिटेंशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसी शेप आपने अचीव करनी है और फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल प्रेप जो रेजिस्ट करे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टिपिंग और लिफ्टिंग फोर्सेस। जो रेजिस्टेंस था वो अलोंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ थी, मेस्टिकेटरी फोर्सेस के अगेंस्ट थी, ठीक है? और ये है टिपिंग और लिफ्टिंग, और इसको हम कहते हैं अगेंस्ट ऑब्लीक फोर्सेस, ठीक है? वो स्ट्रेट फोर्सेस है, ये अलोंग ऑब्लीक फोर्सेस है। इसके हम रिटेंशन कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है? या तो ज्यादा से ज्यादा हम सरफेस एरिया इन्वॉल्व करें, लेंथ, विड्थ, डेप्थ हम तीनों इंक्रीज कर लें। वॉल्स हम पैरेलल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन अचीव होगी। प्रॉक्सिमिटी, रेस्टोरेटिव मटेरियल को क्लोजर टू स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इंसर्शन के मतलब कॉन्टेक्ट एंगल 0 हो। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ डेंटिन, कंडेंसेशन हम लिमिट करेंगे विद इन डेंटिनल प्रोपोर्शन लिमिट्स। ये जरा आपके लेवल से हायर हो जाएगा, ठीक है? आपने मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि वॉल्स जो है वो पैरेलल हो, सरफेस एरिया जिसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और प्रॉक्सिमिटी हो, मतलब रेस्टोरेटिव मटेरियल दांत के साथ प्रॉपर एडहियर हुआ हो। अब हम डिफरेंट तरह के मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट तरीके से जो है रिटेंशन फॉर्म अचीव कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम अमेलगम के लिए कर रहे हैं तो अमेलगम जो होता है अपनी रिटेंशन लेता है थ्रू मैक्रो मैकेनिकल, मतलब आपने कैविटी प्रेप भी करनी है और कंडेंसेशन भी करनी है। मैक्रो मैकेनिकल मतलब कि एडहेजन हम उसमें यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम कोई और मटेरियल यूज करें, फॉर एग्जांपल हम कंपोजिट यूज कर रहे हैं, तो उसकी एडहेजन हमारी आती है थ्रू एडहेसिव बॉन्डिंग मटेरियल जो हम उसके दरमियान में यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिटेंटिव या रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं चाहिए होती, इसलिए हम एक्सटेंड भी नहीं करते उसके लिए, ठीक है? डवटेल क्लास 2 कैविटी में होती है, ठीक है? डवटेल जो होती है रिटेंशन प्रोवाइड कर रही है, ये डिजाइन है जो कि हमें रिटेंशन प्रोवाइड करेगा। क्लास 1 कैविटी में इट इज गिवन फॉर द पर्पसफुल मॉडिफिकेशन इन आउटलाइन, फॉर एक्सटेंशन, फॉर प्रिवेंशन के लिए, ठीक है? अमेलगम के लिए हम एक्सटर्नल कैविटी वॉल्स जो कि कन्वर्ज करें एक्लूजली, उससे हमारे पास कन्वर्ज का ये मतलब है कि टूवर्ड्स मीजियल और अवे फ्रॉम मीजियल और डिस्टल, मतलब कम से कम हम उसको एक्सटेंड करें कैविटी को ऑक्लूजली, ठीक है? और अमेलगम में मैक्रोमैकेनिकल रिटेंशन होगी, कॉम्पोजिट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था थ्रू एडहेसिव मटेरियल जो है वो होगी, ठीक है? एंड थर्ड इज complete now going to the fourth, convenience form.
Convenience form is the shape or form of the cavity that provides for adequate observation, accessibility and ease of operation in preparing and restoring the teeth. मतलब at the end आपने observe करना है, accessibility देखनी है और ease of operation in preparation. आप मतलब कितना इजीली अपना मटेरियल कैविटी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, और उसको फिनिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि केरीज को रिमूव करें. जी मैम, ये आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स? ऑल ऑफ द लेक्चर. मतलब कुछ भी इतना समझ ही नहीं आ रहा सही तरीके से. सर के ऊपर से गुजरना है मैम. भी लेट ज्वाइन किए तो आपका फर्स्ट लेक्चर है. जी मैम. ठीक है, हम फिर ऐसा करेंगे कि हॉस्पिटल में एक लेक्चर अरेंज करा लेंगे. ठीक है जी, लाजमी कराइएगा मैम. ठीक है, उसमें आपको लाइव दिखा देंगे तो उसके थ्रू आपको इजीली ज्यादा समझ आ जाएगी. अभी ये कि थोड़ा बहुत नो हाउ के लिए ना ये लेक्चर सुन लें. ठीक है, नेक्स्ट में सर से बात करके तो फिर हॉस्पिटल में रखवा लें. मैम वो नो हाउ भी बहुत मुश्किल से हो रही है. मतलब आप मैं आपको बताऊं, इसके लिए आप YouTube पे वीडियोस देखें. ठीक है, बुक खोलनी पड़ेगी. नो हाउ कौन सी बुक से पढ़ना होगा मैम? खुली हुई है. आर्ट एंड साइंस है इस लेवल पे, आप वो पढ़ें. आपको सिर्फ उसमें आप ये लिखें जी, देख लें मतलब किसी चैप्टर में जो लिखे हुए जीवी ब्लैक की क्लासिफिकेशन. ठीक है, उसमें आपको पता हो कि क्लास 1 में क्या है, 2 में क्या है और 6 तक क्या क्या है. क्लासिफिकेशन विद टर्मिनोलॉजी, आपको जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टेप्स हैं 4 हैं. ठीक है, इनिशियल कैविटी प्रेप के 4 स्टेप्स तो आपको मतलब फिंगर टिप्स पे हों. जो फर्स्ट था हमने आउटलाइन फॉर्म बताई कि मतलब सारी केरीज को इंक्लूड कर लिया. केरीज का तो पता है ना. ठीक है, डिफेक्टिव पोर्शन इंक्लूड कर लिया हमने और ऐसी एक रफ सी आउटलाइन फॉर्म बना ली जो एंड पे भी होगी. ठीक है, फिर हम उसके बाद रेजिस्टेंस फॉर्म पे चले गए कि हमने उस रेस्टोरेशन को डिसलॉज नहीं होने देना. डिसलॉज का मतलब है कि वो बाहर नहीं निकलने देना उसको. ठीक है, तो उस पे अगेंस्ट कौन सी फोर्सेस ऐसी एक्ट कर रही होती हैं दांत के ऊपर जिसकी वजह से रेस्टोरेशन डिसलॉज हो सकती है. तो वो कौन कौन सी हैं? या तो मैस्टिकेटिव फोर्सेस हैं जो एक्ट करती हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ. ठीक है मैम, अब आप इसका एक्सप्लेन कर रही है ना तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन मैं थर्ड टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ. जब आप सिर्फ स्लाइड्स रीड करती है ना तो कुछ भी नहीं समझ आता मैम. ठीक है, मैं साथ साथ इस तरह भी कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है. ठीक है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. तो प्राइमरी रेजिस्टेंस सेंड कर दें फिर ग्रुप में. स्लाइड्स रिपीट कर दूं? नो मैम, आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में व्हाट्सएप. ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी. तो इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं भी बताई. ठीक है, वो काफी हायर लेवल की. तो जो आपके लेवल की है उसमें आप सिर्फ आपको ये नो हाउ होनी चाहिए. जो अभी सेकंड में आपको बता रही थी दैट वाज प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म. ठीक है, कि जो मैस्टिकेटिव फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ, तो आपने प्रिवेंट करना है रेस्टोरेशन को कि वो डिसलॉज ना हो. आप समझ आ रही है क्लास? आ रही है मैम अभी. हाँ, तो उसके लिए मतलब हमने ऐसी फॉर्म अचीव करनी है. तो उस फॉर्म को हम अचीव किस तरह करेंगे कि कैविटी की शेप कैसी हो, बॉक्स जैसी हो. ठीक है, उसका फ्लोर कैसा हो, फ्लैट हो बिल्कुल, मतलब ऊपर नीचे नहीं होता जिस तरह के इरेगुलर सी सरफेसेस होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए. और थिकनेस उसकी मैक्सिमम हो कि वो डिसलॉज ना हो. ठीक है, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म के लिए हैं. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म. अब रिटेंशन का क्या मतलब है कि मैंने एक ऐसी कैविटी फॉर्म अचीव करनी है जो कि ओब्लीक और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अगेंस्ट रेस्टोरेशन को बाहर ना निकलने दे, डिसलॉज ना होने दे. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगी, या तो उसके लिए भी मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए थे. या तो मैं डवटेल का एक डिजाइन है डवटेल, ठीक है, उसके थ्रू मैं अचीव करूंगी. इसको हम कहते हैं डवटेल. ये इट लुक्स लाइक अ डवटेल. ठीक है, तो इसके थ्रू मैं ये अमेलगम के लिए बनाई है मैंने. अगर यही अमेलगम एक मटेरियल है जो हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, कॉम्पोजिट एक और मटेरियल है
जो कि हम फिलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने अमेलगम की कैविटी प्रेप करनी है तो दैट वुड बी डिफरेंट, अगर मैंने कॉम्पोजिट की करनी है तो दैट वुड बी डिफरेंट। अब फिर मैंने देखना है कि कॉम्पोजिट अपनी एडहीजन कैसे लेगा और अमेलगम कैसे लेगा। अमेलगम को दांत के साथ एडहियर होने के लिए, दांत के साथ जुड़ने के लिए ना दांत का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, जबकि कॉम्पोजिट यही जो बॉन्डिंग है ना वो उसमें हम बॉन्डिंग एजेंट्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसको जरूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर कैविटी फॉर्म बनाई हो उसके लिए। कुछ समझ आया? अब इससे ज्यादा इजी तो नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकती, टू लेम। हाँ जी मैम। ठीक है, अब फोर्थ वाज द कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म में ये कि मैंने सारा केरीज रिमूव कर दिए और मैंने इतनी एक्सेस बना लिए जिससे केरीज जो रह गई हैं वो भी रिमूव हो जाए और मैं इजीली रेस्टोरेशन को प्लेस कर सकूं और इजीली मैं फिनिशिंग और क्लीनिंग कर सकूं। ठीक है, कन्वीनियंस फॉर्म का समझ आया कि मैं रिमूव कर सकूं जो सारी केरीज हैं इजीली, मतलब ऐसी एक्सेस बनाऊं और फिर मैं इजीली प्लेस कर सकूं जो रेस्टोरेशन है, जो फिलिंग मटेरियल है उसको मैं इजीली प्लेस कर सकूं और उसकी फिनिशिंग बहुत इजीली कर सकूं। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है कि अब कोई हम देखेंगे कि हमारे पास कोई रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन जो ओल्ड रेस्टोरेशन तो नहीं पड़ी हुई। ठीक है, उसमें हमने रिमूवल उसका करना है। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि बाद में सेकेंडरी केरीज नहीं होगी। सेकेंडरी केरीज होती है जो दोबारा केरीज हो जाती है, एक तो जो हमने ट्रीट किया हुआ है केरीज का। ठीक है, रेस्टोरेशन के बाद जो दोबारा केरीज होगी दैट इज सेकेंडरी केरीज। फिर उसके बाद हम पल्प को प्रोटेक्ट करना है। पल्प का पता है ना, जितना जितना यस हम मैम। क्लोज जाते जाएंगे टूवर्ड्स द पल्प तो उतना उतना हमने उसको पल्प की प्रोटेक्शन करनी है। मतलब हमने अवॉइड करना है कि हम डेंटिन को ज्यादा रिमूव ना करें, अदरवाइज हम पल्प के अंदर इंटर हो जाएंगे जो बाद में फिलिंग से रूट कैनाल बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर रिमेनिंग डेंटिन कम रह गई है ना तो हम उसके ऊपर लाइनर्स या बेसिस लगा देंगे। उससे क्या होगा कि बाद में रेपरेटिव डेंटिन बन जाएगी तो पल्प प्रोटेक्ट रहेगा। कैविटी फॉर्म में ये नहीं करना कि दांत के अंदर एक खड्डा खोद देना है। ठीक है, आपने देखना है कि मेरी कैविटी की डेप्थ कितनी है। ये तो नहीं हो रहा कि मैं पल्प के अंदर एंटर हो गया हूँ। पल्प के अंदर एंटर होना इज द मोस्ट कॉमन फेलियर ऑफ कैविटी प्रेप। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 7 इज सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म। हमने प्राइमरी रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म पढ़ लिया ना, अब उसके बाद सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हम और किस किस तरह से रिटेंशन और रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सटेंड की भी हो ना कैविटी, मतलब एमओडी कैविटी हो, तो उसमें हम रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म अचीव करते हैं या तो मैकेनिकल फॉर्म से या कैविटी वॉल कंडीशनिंग फॉर्म से। मैकेनिकल फॉर्म का क्या मतलब है कि मैंने दांत के अंदर रिटेंशन लॉक्स दे दिए, ग्रूव्स दे दिए, कर्व्स दे दिए। ठीक है, स्कर्ट्स, मैंने इनेमल मार्जिन को बेवल किया। बहुत जरा कॉम्प्लेक्स है तो ये जरा आपको जब पहले सारा समझ आया हुआ होगा तो फिर ये समझ आएगी बात कि मैंने प्रॉपर एक बना ली कैविटी, अब मैं इंक्रीज करना चाह रही हूँ रिटेंशन और रेजिस्टेंस फॉर्म। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मेरी रेस्टोरेशन डिसलॉज ना हो और मेरी जो केरीज है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड कर रही है, तो मैं लॉक्स दूंगी, ग्रूव्स दूंगी, कर्व्स, स्कर्ट्स, इनेमल मार्जिन को मैं बेवल कर दूंगी, पिन्स दे दूंगी। ठीक है, स्लॉट्स दे दूंगी और अमेलगम पिन्स दे दूंगी। इससे क्या होगा कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिटेंशन अचीव हो जाएगी और रेस्टोरेशन बहुत इजीली डिसलॉज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए, बेशक आपको डिफाइन नहीं करने आना चाहिए ये जो सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद फिनिशिंग एक्सटर्नल वॉल्स। अब सारी मैंने कैविटी बना ली है, अब मैंने फिनिशिंग करनी है। स्पेसिफिक कैवो सरफेस डिजाइन करना है, डिग्री ऑफ स्मूथनेस दैट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ऑफ द रेस्टोरेटिव मटेरियल बीइंग यूज्ड। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या है कि हमारी मार्जिनल सील हमारे पास बेस्ट
प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, और स्मूथ मार्जिनल जंक्शन हो और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो टूथ की भी और मटेरियल की भी। थर्ड इज स्टेप 9 इज द फाइनल प्रोसीजर। फाइनल प्रोसीजर में आपने क्या करना है, अब सारी कैविटी प्रेप कर ली, ठीक है, अब आपने ट्रिपल स्ट्रेंज से उसको क्लीन किया, इंस्पेक्ट किया और सील कर दिया। सील का मतलब है आपने बीच में, अच्छा, क्लीनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, वाटर एयर कॉम्बिनेशन से, ड्राई कॉटन पैलेट से, कैविटी क्लीनर से, ठीक है, और इरिगेट कर सकते हैं। और फिर सील का मतलब है कि आपने कॉम्पोजिट या अमेलगम जो भी रखनी थी वो कैविटी रख दी, एंड पे आपने उसको फाइनल फिनिशिंग कर दी, ठीक है, कुछ समझ आइए? जी मैम, कुछ हद तक तो आ ही गई है। आप कोई मतलब वीडियो सजेस्ट कर सकती हैं, मतलब कोई भी जो जिससे ज्यादा क्लियर समझ आ जाए कि किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है। यार यूट्यूब पे जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन लिखो, ठीक है, उसमें काफी सारी आपके पास वीडियोस आ जाएंगी। मैम ब्लैक क्लासिफिकेशन या ओके ब्लैक मैम। क्लासिफिकेशन? G.V ब्लैक BLACK, ठीक है, ओके मैं आपको वीडियो अभी सजेस्ट करती हूँ, वेट, आई डोंट नो इसको मैं कैसे करूँ। अभी ओपन नहीं हो रही यूट्यूब, ठीक है, इसमें हमने यूट्यूब पे जाना है, जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन लिखनी है और प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ कैविटी प्रेपरेशन, ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो इसमें आ रही थी ना, दैट वाज ऑसम, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स हैं 4 to 5, तो उससे बहुत बहुत इजीली आपको समझ भी आ जाएगा, आप उसका वीडियो देखेंगी तो वो भी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा आप लोगों के साथ लेक्चर हुआ तो आई विल शेयर दैट वीडियो, ठीक है। ओके मैम। मैम एनीथिंग एल्स यू वांट आस्क? मैम एक मैम जेवी ब्लैक है और दूसरी कौन सी देंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कैविटी प्रिपरेशन। मैम जी जी, आप स्लाइड्स किस तरह सेंड करेंगी? आपका नंबर नहीं है। मैं अभी सर को कह दूंगी, वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? ये लेक्चर्स रिपीट होंगे, ठीक है। यस मैम। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ ना, उसके बाद फिर आप लोग जूम आउट हो जाना, अभी नहीं होना, ठीक है। ओके मैम।
मैम हम जा सकते हैं? 1 मिनट, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आपकी। ओके मैम।